آج کا میرا موضوع ہے منشی پریم چند۔ منشی پریم چند اور ان کا افسانوی مجموعہ واردات کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ BA فرسٹ ایئر کے فرسٹ پیپر میں آپ کو نثر کے حصے میں پڑھنا ہے، واردات کے بارے میں پڑھنا ہے، جو افسانوی مجموعہ ہے پریم چند کا۔ تو واردات پڑھنے سے پہلے منشی پریم چند کے بارے میں جانتے ہیں، اور منشی پریم چند کی جو افسانہ نگاری ہے ان کی کیا خوبیاں ہیں، انہوں نے افسانوں کو کس طریقے سے برتا ہے، اور ان کی تخلیقات کی آخر خوبیاں کیا ہے جس کی وجہ سے لوگ پریم چند کو اعلیٰ پائے کے افسانہ نگار سمجھتے ہیں، مانتے ہیں۔ تو ان خوبیوں کو دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں منشی پریم چند کے بارے میں، اس کے بعد ان کے افسانہ نگاری کے بارے میں دیکھیں گے، ان کے افسانوں کے خوبیوں کے بارے میں دیکھیں گے، اور اس کے بعد واردات جو ان کا افسانوی مجموعہ ہے اور ان میں جو افسانے ہیں ان کا بھی تجزیاتی مطالعہ کریں گے۔ تو منشی پریم چند کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ ان کی پیدائش جو ہے وہ 1880 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور یاد رکھیے گا آبجیکٹیو میں آپ کا کام آئے گا، کیونکہ 20 نمبر کا آبجیکٹیو رہتا ہے، تو آبجیکٹیو بنانے کے لیے آپ کو کام آئے گا۔ تو بنارس کا ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے لہمی گاؤں، یہاں آپ 1880 عیسوی میں پیدا ہوتے ہیں۔ والد کا نام عجائب لال، اور منشی پریم چند کا اصل جو نام ہے وہ دھنپت رائے، اور ان کے چچا نے نام دیا منشی پریم چند کا، کہ چچا نے ان کا نام دیا پریم چند۔ تو دیکھ لیا آبجیکٹیو میں کیا ہے کہ منشی پریم چند 1880 عیسوی میں بنارس کے لہمی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام عجائب لال ہے، اور ان کا ابتدائی جو نام ہے، ان کا پہلا جو نام تھا وہ دھنپت رائے، اور چچا نے ان کا نام پریم چند رکھا۔ اور اس کے بعد پریم چند نے شروع میں جو لکھنے کے لیے اپنا نام جو منتخب کیا تھا وہ کیا تھا آپ کا نواب رائے۔ تو سب سے پہلے ان 3 ناموں کو یاد رکھیے گا کہ ان کا اصل نام جو ہے دھنپت رائے ہے، چچا نے ان کا نام پریم چند رکھا، اور انہوں نے شروع میں جو لکھنا شروع کیا یعنی قلمی نام جو انہوں نے رکھا نواب رائے رکھا، اس کے بعد پھر پریم چند لکھنا شروع کیے۔ تو 1880 عیسوی میں پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی ابتدائی تعلیم جو ہوتی ہے، ان کی ابتدائی تعلیم جو ہے گاؤں میں تعلیم ہوئی ہے، اور ابتدائی تعلیم ان کی ہوتی ہے اردو اور فارسی کی، یعنی گاؤں کے جو مولوی صاحب تھے ان سے ان کی ابتدائی تعلیم ہوتی ہے اردو اور فارسی کے۔ اس کے بعد دیکھتے 1895 یعنی 1895 عیسوی میں گورکھپور سے مڈل کا امتحان پاس کرتے ہیں۔ 1895 عیسوی میں گورکھپور میں ہی مڈل کا امتحان پاس کرتے ہیں۔ اس کے بعد 1899 میں یاد رکھیے گا 1899 میں اسسٹنٹ ٹیچر کی نوکری لگتی ہے۔
یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ ان کا جو تعلق تھا وہ ایک غریب خاندان سے تعلق تھا، گاؤں کے رہنے والے تھے، وہاں سے وہ انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، یعنی اس سماج کے مزاج کے اعتبار سے یا رواج جو تھا کہ شروع میں بچے جو ہے مولوی صاحب کے پاس جایا کرتے تھے، وہاں اردو اور فارسی کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے آگے آتے تھے۔ پریم چند کی بھی ابتدائی تعلیم اردو فارسی میں ہوئی، اس کے بعد 1895 میں مڈل کا امتحان پاس کیا اور 1899 میں اسسٹنٹ ٹیچر کی نوکری ملتی ہے۔ اس کے بعد 1900 میں ان کا 1900 میں بہرائچ چلے جاتے ہیں اور ان کا گورنمنٹ اسکول میں تقرر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں سے وہ پروموٹ ہو کے الہ آباد میں جاتے ہیں، الہ آباد سے ہی ان کی تخلیقی کام شروع ہوتا ہے اور سنجیدگی کے ساتھ یہ لکھنا شروع کرتے ہیں۔ تو لکھنے کا عمل جو شروع ہوتا ہے پریم چند کا، وہ ہوتا ہے آپ کو الہ آباد سے، اور لکھتے ہوئے انہوں نے پڑھائی اپنا جاری رکھا اور 1904 میں جونیئر انگلش ٹیچر کا امتحان پاس کرے، اور اسی سال انہوں نے الہ آباد یونیورسٹی سے اردو ہندی کا خصوصی امتحان بھی پاس کیا، اور 1904 میں دیکھتے ہیں تو یہ زیادہ اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا، لیکن دیکھتے ہیں 1919 میں کیا ہوتا ہے۔ 1919 میں یعنی ٹیچر یعنی اپنی نوکری میں رہتے ہوئے 1919 عیسوی میں پریم چند بی اے کا امتحان پاس کرتے ہیں، اور یعنی نوکری میں رہتے ہوئے انہوں نے بی اے کا امتحان پاس کیا، اور 1921 میں جب پورے ہندوستان میں ایک تحریک چل رہی تھی، عدم تعاون کی تحریک چل رہی تھی، یعنی سودیشی اپنانے کی تحریک چل رہی تھی، تو اس تحریک میں پریم چند بڑھ چڑھ کر حصہ لیے، اور جس کی وجہ سے انہوں نے انگریزوں کی نوکری کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے نوکری سے وہ علیحدہ ہو گئے۔ 1921 میں علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ تو پریم چند کو دیکھتے ہیں، جب ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں اور ان کی تخلیقات کو پڑھتے ہیں تو یہ بات بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے کہ پریم چند نے نہ صرف جو ہے قلم سے لڑائی لڑی ہے، بلکہ عملی طور پر بھی اپنے سماج کے لیے اور اپنے دیش کے لیے، اپنے ملک کے لیے لڑائی زمینی سطح پر بھی لڑی ہے۔ تو یہ ہے، اور ان کی پوری زندگی اسی تقدوں میں گزر جاتی ہے، اور اسی سماج کو آگے بڑھانے کے لیے، سماج کو ایک نئی راہ دکھانے کے میں پوری زندگی ان کی گزرتی ہے۔ اور 18 اکتوبر 1936 میں جب ان کی عمر 56 یعنی 56 سال کی تھی، تو وہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے یہاں سے، یعنی اس دار فانی سے وہ رخصت ہو جاتے ہیں۔ ایک بڑا افسانہ نگار، اردو کا بڑا افسانہ نگار دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو یہ منشی پریم چند کا ایک چھوٹا سا خاکہ تھا، یہ اس لیے بتائے ہیں تاکہ آبجیکٹو میں آپ کو لکھنا آسان ہو جائے، آبجیکٹو جب آئے تو اسے آرام سے لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو منشی پریم چند کے بارے میں تھے، کچھ زندگی کے بارے میں کچھ ہلکا سا پوائنٹس ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ان کی افسانہ نگاری۔ پریم چند کی افسانہ نگاری یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو دیکھتے ہیں پریم چند کی افسانہ نگاری کے بارے میں۔ مسعود حسین خان نے ایک مضمون لکھا جس کا نام ہے پریم چند کی افسانہ نگاری کے دور، یعنی مسعود حسین خان نے پریم چند کے افسانہ نگاری کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ انہوں نے جو تقسیم کیا ہے وہ کیا ہے 1903 سے لے کے 1909 تک۔ اس کے بعد دوسرا دور جو ہے 1909 سے لے کر ہے 1920 تک، 1909 سے 1920، اور تیسرا جو ہے
1920 से 1932 तक है, और चौथा दौर है 1932 से लेकर 1936 तक। ये इनका दौर है प्रेमचंद का। तो 3 से 1909 में इनकी इब्तदाई कोशिश है, जो उन्होंने शुरू में लिखना शुरू किया, वो तख्लीक़ात 1903 से लेकर 1909 तक में है। उसके बाद 1909 से लेकर 1920 तक में आपका तारीख़ी और इस्लाही अफसाने हैं, तारीख़ी और इस्लाही अफसाने आते हैं, इस्लाही अफसाने हैं। उसके बाद 1920 से लेके 1930 पे जब नज़र डालते हैं तो यहाँ इस्लाही और सियासी अफसाने मिलने शुरू होते हैं, इस्लाही और सियासी अफसाने इस दौर के तख्लीक़ात है। और 1932 से 1936 पे अगर नज़र दौड़ाते हैं तो यहाँ सियासी और फ़िक्री अफसाने मिलते हैं, सियासी और फ़िक्री अफसाने। तो प्रेमचंद जब शुरू में लिखना शुरू किए तो छोटी मोटी कहानियां लिख रहे थे, लेकिन 1903 में बड़ी कहानी सामने आती है, यानी नॉवेल के शक्ल में, और उस नॉवेल का नाम रहता है असरार मुआबिद। और यहाँ से तख्लीक का आगाज़ होता है अफसाना निगार नॉवेल का। उसके बाद फिर जो है अफसाने 1903 के बाद 1908 का ज़माना देखते हैं। 1908 में इनका अफसाने मजमुआ सामने आता है जिसका नाम है सोज़े वतन। सोज़े वतन के जितने भी अफसाने हैं वो उसमें हिब्बुल वतनी का जज्बा बहुत उरूज पे है, जिसकी वजह से बरतानिया की हुकूमत ने इस मजमूए को ज़ब्त कर लिया था। तो याद रखिए 1908 में सोज़े वतन। उसके बाद जो है इनका लिखने का अमल जारी रहता है, नावल भी लिख रहे हैं और अफसाने भी लिख रहे हैं, और ज़माने के हिसाब से इनके मौज़ूआत बदलते जा रहे हैं। चूँकि इनका ताल्लुक़ खुद गाँव देहात से था तो इनके मौज़ूआत जो है वो उन्हीं गाँव और देहात के हैं। तो प्रेमचंद के अफसानों के समझने से पहले 2-3 बातें अपने ज़हन में रखना ज़रूरी है, तो पहले इनको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि भी अदब जो है वो हवा में तख्लीक नहीं होता है, यानी कोई भी अदीब जो है तख्लीकार लिखने वाला जब वो लिखने के लिए बैठता है तो अपना मवाद जो है इसी समाज से हासिल करता है, और जो असरात मुरतब करता है अपने समाज से, उन्हीं असरात को और उसे महसूस करके वो अपने तख्लीक में शामिल करता है। अब वो है तख्लीक में शामिल करने का ज़रिया अलग अलग होता है। कोई है अपने अफसानों के ज़रिए अपने जज्बात व एहसासात का बयान करता है, कोई नावल के ज़रिए करता है, कोई मज़मून के ज़रिए करता है, कोई तंज़ो मिज़ाह के साथ में करता है। लेकिन वो मवाद जो इकट्ठा करता है वो इसी समाज से इकट्ठा करता है जिस समाज में वो चल फिर रहा हो, यानी समाज में के उतार चढ़ाव से वो मुतासिर होता है और बाद में अपने तख्लीक से समाज को मुतासिर करता है। तो प्रेमचंद के अफसाना को समझने के लिए समाजी पस मंज़र को जानना भी ज़रूरी है। तो पहले समाजी पस मंज़र को देखते हैं, उन हालात को देखते हैं कि जिन हालात ने प्रेमचंद को प्रेमचंद बनाया। तो पहले देखते हैं समाज को। देखिए, यानी प्रेमचंद को देखते हैं तो प्रेमचंद का पहला जो नॉवेल आता है वो है 1903, और 1908 में पहला आपका अफसानी मजमुआ मंज़र आम पाता है, क्योंकि हमें अफसाना निगारी पे है इसलिए इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। 1908 में इनका पहला अफसानी मजमुआ आता है, और इनकी आखिरी जो कहानी है
वो आपको 1936 में है। तो 1908 का 1936 का ज़माने पर हम लोग गौर करेंगे तो ये जो ज़माना है बहुत उतार चढ़ाव का ज़माना है। यही वो ज़माना, यानी हिंदुस्तान के अपने मुल्क में, हिंदुस्तान में अगर देखा, हिंदुस्तान में एक बड़ी तब्दीली हो रही थी। उसके बाद अगर आलमी पैमाना पर देखे जाए तो वहाँ भी एक बड़ी तब्दीली हो रही थी। उस आलमी पैमाने से प्रेमचंद भी मुतासिर हुए और दुनिया के तमाम लोग मुतासिर हुए। तो सबसे बड़ी तब्दीली जो नज़र आती है वो 1917 में आती है। 1917 में क्या होता है? 1917 में रूस में एक बड़ा इनकलाब आता है। इन चीज़ों को समझ लीजिए। जब आप आलमी पैमाने पर समाजी और सियासी बदलाव को देखेंगे तो समझ में आएगा कि अफसाना निगार किस तरीके से हालात से, माशरे से मुतासिर होता है और उनके मौज़ूआत किस तरीके से बदलते हैं। तो रूस में जो है, अब देखिए, रूस 1917 में रूस में एक बड़ा इनकलाब आता है। और रूस में जो साम्राज्य जो था, जो हुकूमत जो थी, वो हुकूमत थी ज़ार की, यानी ज़ार निकोलस दोयम की। अब 1917 से पहले एक बहुत बड़ा घटना 1905 में होता है, रूसी में होता है। 1905 में होता ये है कि रूस जो है तब बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है। उसके मैप में देखिए तो एशिया का सबसे बड़ा देश है वो। लेकिन 1905 में जापान ऐसे छोटे देशों से ये हार जाता है और इसके हार होने के बाद इसकी माशी हालत रूस की बहुत ख़राब होती है, जिसके वजह से वहाँ के लोग जो है राजा के पास जाते हैं और वहाँ रोटी दे को नारा लगाने लगते हैं। तो बजाय इसके राजा को रोटी का इंतज़ाम करने, यानी खाने पीने का इंतज़ाम करता, उसने ये हुक्म दे दिया कि इन लोगों पर गोली चला दो। और इस तरीके से लोगों पर गोली चला दी गई, जिसके वजह से बहुत सारे बेगुनाहों की जान चली गई। लेकिन उसके बाद लेनिन ने जब इसका कमान संभाला तो लेनिन ने 1917 ईस्वी में ज़ार की हुकूमत को ख़त्म कर देता है। और पहली दफ़ा पूरी दुनिया इन चीज़ों से वाकिफ़ होती है कि एक मज़दूर तबका भी हुक्मरानी के गद्दी पर बैठ सकता है। अब ये जो सियासी बदलाव है ये रूस के साथ साथ रूस के बाहर के मुल्कों के लोगों के दिमाग में भी ये बैठ जाता है। ये बदलाव उसके दिमाग में बैठता है और ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि एक मज़दूर तबका भी हुक्मरानी कर सकता है। जबकि इससे पहले ये मानना था कि मज़दूर सिर्फ काम करने के लिए है, यानी निचला तबका सिर्फ काम करने के लिए है। लेकिन एक बहुत बड़ा फ़िलासफ़र जो है आता है कार्ल मार्क्स के थ्योरी की वजह से, कार्ल मार्क्स का जो नज़रिया था उसके वजह से समाज में एक बड़ी तब्दीली आती है। समाज में को दो हिस्सों में उसने बांट रखा था। एक देखते हैं, यानी जो बड़े लोग थे उसको कहा जाता था बुर्ज़वा तबका और दूसरा था प्रोलेतारी तबका, यानी मजदूर किसान जो है प्रोलेतारी कहलाते थे और बड़े लोग वो बुर्ज़वा तबका कहलाता था। यानी दो तबका था, एक बड़े लोगों का, एक छोटे लोगों का तबका था। और कार्ल मार्क्स ने पहली दफ़ा बराबरी का नज़रिया पेश किया, जिससे मुतासिर होकर रूस में बड़ा इनकलाब आया। और रूस का जब इनकलाब आया तो इसका असर जो है हमारे हिंदुस्तान पे भी पड़ने लगा। और हिंदुस्तान के लोग जो उस वक्त जुल्म सितम सह रहे थे और उस वक्त जो है बरतानिया की जो हुकूमत थी वो जब जुल्म कर रहे थे, तो किसानी जो यहाँ ज़मींदारी हुकूमत थी उसके अंडर में, उसके मातहत में जो मज़दूर थे उसके दिलो दिमाग में ये बैठना शुरू हो गया था कि अब हम आज़ादी के फ़िज़ा में हम सांस ले सकते हैं और ग़ुलामी के ज़ंजीरों को तोड़ सकते हैं। तो ये एक सियासी बड़ी तब्दीली थी, सियासी तब्दीली हो रही थी।
और दूसरा जब अदब के में देखते हैं, ये तो सियासी तौर पर था, लेकिन अदबी तौर पे जब देखते हैं तो उर्दू अदब का पूरा जो सरमाया है प्रेमचंद से पहले का, वो सारा सरमाया जो है वो नज़र आता है आला तबका। उस सरमाए में आला तबके की हुक्मरानी होती है। यानी उस ज़माने का प्रेमचंद से पहले का अदब जब देखिएगा तो उसमें भी जितने भी हीरो हीरोइन है, जितना भी आपकी कहानियाँ हैं, उनका ताल्लुक़ जो है वो आला दर्जे की है, आला तबके की नुमाइंदगी करता है। हीरो है तो वो कोई राजा है, कोई रानी है, कोई वज़ीर है, वज़ीरज़ादा है, ये सब कहानियाँ मिल रही थी। प्रेमचंद पहली दफ़ा है जो अपने तख्लीक में जो हीरो के तौर पर पेश करता है, वो मज़दूर को पेश करता है हीरो के तौर पर। और जो किसान है, जो खेतों में काम करने वाला है, उससे बतौर हीरो अपने कहानियों में पेश करते हैं प्रेमचंद, और बताते हैं कि जो उस तबके के नुमाइंदगी करता है, उस मज़दूर और किसान के भी जज्बात होते हैं, उसमें भी मोहब्बतें होती है, उसमें भी आपके जद्दोजहद होते हैं। तो उन रोमांस को, उन मोहब्बत को प्रेमचंद ने अपने अफसानों में पेश किया है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेमचंद के अफसानों में हकीकत और रोमांस का बेहतरीन इम्तिजाज है। यानी देखिए, एक तरफ तो हकीकत निगारी है, हकीकत निगारी है, उसके साथ साथ रोमानवी अंदाज भी है। अब एक तरह से देखा जाए, हकीकत निगारी और रोमानी अंदाज में अगर देखा जाए तो खुद में एक बड़ा जो है मतजाद चीज़ें हैं, क्योंकि हकीकत निगारी है, एक खारजी हकीकत है, यानी इंसान के खारजी मामलात को उसका सही इंसान या माशरे के सही नुमाइंदगी हकीकत निगारी कही जाती है। जबकि रोमान का ताल्लुक़ इंसान की जिबिल्लत से है, और जहाँ इंसान अपने तख़य्युल के बुनियाद पर तमाम चीज़ों को बयान करता है। तो देखते हैं अफसाना, ये प्रेमचंद के अफसाना निगारी का दौर जब शुरू होता है तो इसका अफसाना निगारी का सफ़र में देखते हैं कि इनके 3 तरह के मौज़ूआत हैं। इनके मौज़ूआत को 3 हिस्सों में तक़सीम कर सकते हैं। पहला हम देखते हैं, यानी इब्तदाई दौर में इनके अफसानों में दास्तानों का असर रहा है। दूसरा अगर देखते हैं तो इनके अफसानों में हुब्बुल वतनी है, और तीसरा में देखते हैं कि तीसरे दौर में इंसानी नफ्सियात का बेहतरीन तज्ज़िया किया है। ये 3 मौज़ूआती एतबार से देखें तो आप प्रेमचंद के अफसानों को 3 हिस्सों में तक़सीम कर सकते हैं। इनके मौज़ूआत को पहला देखते हैं कि इब्तदाई दौर के जितने अफसाने हैं, इनकी तख्लीक़ात है, उसमें दास्तानों का असर है। दास्तान में हम लोग दास्तान जब पढ़ते हैं तो बात ये समझ में आती है कि दास्तान में माफ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर होती है। तो यानी सुपर पावर की बात होते हैं, अननेचुरल बातें होती हैं, तो ये दास्तान है। दूसरे दौर में देखते हैं कि प्रेमचंद जो है, प्रेमचंद की तख्लीक़ात में हुब्बुल वतनी का असर होता है, और अपने नौजवान को मुल्क के लिए खिदमात देने, मुल्क के लिए जद्दोजहद करने का तरग़ीब देते हैं। और तीसरा में इंसानी नफ्सियात का तज्ज़िया करते हैं, यानी इंसानी नफ्सियात को पेश करते हैं। ये तो मौज़ूआत के हिसाब से। उसके बाद जब किरदार को देखते हैं कि इन प्रेमचंद का किरदार जो है वो देही किरदार है, देहातों का किरदार है। तो प्रेमचंद के अक्सर जो किरदार होते हैं वो सताए हुए किरदार होते हैं। समाज के ज़ालिमाना नज़रिया को पेश किया है, जो जागीरदारा निज़ाम है और उनकी कली को खोला है।
تو ان کے تمام کردار جو ہے ان سے ستائے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے کرداروں کے ذریعے سے وہ جو زمینداری جو طبقہ ہے اور اس کے ظلم و ستم کو بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے پیش کیا ہے۔ لیکن ان چیزوں کو پیش کرنے میں ایسا نہیں ہے کہ پریم چند جو ہے اپنے تخیلات کے بنیاد پر حقیقت سے دور چلے جاتے ہیں، بلکہ ان کے جو ہے افسانے ہیں یا ان کے کردار ہیں وہ زمینی سطح کے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانوں میں دیہی علاقوں کے منظر نظر آتے ہیں، اور وہاں دیہات کی خوشبو ان کے افسانوں میں نظر آتی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے واردات کے جتنے افسانے ہیں ان کو تجزیاتی مطالعہ کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ہے، باقی ہم نیکسٹ دیکھیں گے۔